हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं हम, और प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। टुडे आई विल टॉक अबाउट द हाई यील्डिंग वैरायटीज़ which were developed by the plant breeding experiments, okay, and other concepts which are related to the plant breeding which were used to enhance the crop productivity and to make the disease resistant varieties and to increase the nutritional value of the crops. One by one I will take up all the aspects related to the plant breeding. India is an agriculture country, we know that, because agriculture contribute about 32% of the total GDP. एग्रीकल्चर मीन्स 32% GDP का, इंडिया की GDP का जो है एग्रीकल्चर से आता है, और एंड इट प्रोवाइड 62% पीपल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी लोगों को प्रॉपर फूड देना, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दैट वाज एट द अलार्मिंग rate and that was posing a problem. Why? What was the reason of the problem? Because population was increasing and resources of food were not that much available. Okay, so then there was a phase of the green revolution. जब green revolution आया तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो कई गुना बढ़ गई। तो उस टाइम पे जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कौन सी नई क्रॉप्स ग्रो की गई, आज उस फील्ड में क्या किया जा रहा है और किस तरीके से हाई यील्डिंग क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, दैट आई विल डिस्कस हियर. आई विल टेक अप ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज. These are the varieties of the different crops. We can see here that how the use of the improved varieties increase the production of the different crops. For example, first is the wheat. We can see that from the 1960 to 2000, the productivity increased from 11 million tons to 75 million tons by developing the high yielding varieties. Are you getting my point? कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन 1960 में 11 मिलियन टन थी वो बढ़कर 75 मिलियन टन हो गई due to the development of high yielding varieties of the wheat. And these varieties, these are the semi-dwarf varieties that were developed in case of the wheat and the rice. In rice also the production has been increased by using the high yielding semi-dwarf varieties. The different varieties of the wheat are the Sonalika, Kalyan Sona, which are the semi-dwarf varieties. They are the high yielding, means production is also very good, and they are disease resistant also. And the contribution of Eberlog, Norman Eberlog, to develop these varieties, that is very important. Then the Lerma Rosa 64A, Sonara 64, Safed Lerma, these all are also the wheat improved varieties. मतलब ये वो varieties हैं जो कि improve की गई हैं plant breeding experiment से, and these are the high yielding varieties. ये क्वेश्चन बहुत important है, इसके अंदर ये अपने आप में बहुत important है क्योंकि high yielding varieties के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है. फिर है राइस की, जब हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ गई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की प्रोडक्शन की वजह से. इसमें भी जो साइंटिस्ट हैं दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द हाइब्रिड वैरायटीज़ और द हाई यील्डिंग वैरायटीज़. जैसे IR8 है, इसका भी नाम से ही क्वेश्चन आता है. IR8 इज़ द वैरायटी ऑफ द राइस which is developed in the Indian, this is the IR8. This is the particular rice variety that is developed in the International Rice Research Institute, Philippines. This is very very important. This is the International Rice Research Institute in Philippines. This variety has been developed. Then next is the Taichung native one that is developed in Taiwan. And another varieties of the rice are Jaya and Ratna. And MS Swaminathan played very important role in the Green Revolution at that time. Earlier also I mentioned this particular name, MS Swaminathan. Okay, तो ये आपने देखा कि वीट और राइस में किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है जब हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं. तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ द वीट एज वेल एज द राइस. ओके, स्पेशली यू शुड रिमेंबर द नेम about the IR8 that was developed in the International Rice Research Institute, Philippines. Okay, then we have the sugar cane. अब sugar cane में दो varieties हैं,
इसमें एक है सैकरम बारबेरी और एक है सैकरम ऑफिसिनेरम। अब इसमें सैकरम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है, बट इट डज नॉट हैव द हाई शुगर कंटेंट, मीन्स इसमें जो शुगर की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं है, शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं है। दूसरी जो वैरायटी है सैकरम ऑफिसिनेरम, दैट इज़ having the thicker stem and having the high sugar production, इसमें high sugar content है, लेकिन it cannot be grown in the North India। important बात क्या है कि सैकरम ऑफिसिनेरम के अंदर थिक स्टेम है और इसका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है, पर ये ग्रो नहीं की जा सकती नॉर्थ इंडिया में। तो एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई सैकरम ऑफिसिनेरम और बारबेरी के से, which can be grown in the North India and it has higher sugar content and as well as the thicker stem। okay, similarly millets की crops भी जैसे ज्वार, बाजरा, मेज, इनकी भी हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की गई हैं, जिससे प्रोडक्शन जो है काफ़ी गुना बढ़ गई है। ओके, तो ये हमने सबसे पहला रोल पढ़ा प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज़ अ फर्स्ट रोल, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग इन द हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ओके, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंट। देखो बेटा, अगर हम अपनी कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उस पर अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरस अटैक करेगी तो हमारी क्रॉप को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो या तो हम क्या करें कि कुछ इस तरीके से अपनाएं कि हम उन क्रॉप्स के ऊपर जो डिजीज़ हो रही हैं वो ना हो, उसके लिए हमें पैथोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पैथोजन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिसाइड, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या इस तरीके से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। दूसरा, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हों। ओके, तो इसी तरीके से जो कन्वेंशनल मेथड थे उससे कुछ डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती थी, बट जो प्लांट ब्रीडिंग में अब तो हम डिज़ायरेबल जीन, मतलब हमें पता है कि पर्टिकुलर डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन हमें चाहिए, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो आपने बायोटेक्नोलॉजी में सारा डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से आप एक डिज़ायर्ड जीन को एक पर्टिकुलर प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा था, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, और बहुत सारे मेथड पढ़े थे जीन ट्रांसफ़र मेथड के। ओके, सो हियर आई विल टेक अप दैट प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ओके, मतलब आप डिजीज़ रेजिस्टेंट, तो पहले तो डिजीज़ का मतलब क्या है, यानी कि कुछ भी उसके अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाना, दैट इज़ अ अनहेल्दी कंडीशन ड्यू टू दी, किस वजह से हो सकता है, या तो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, यानी कि क्रॉप को पूरा न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, या उसके जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो जिसे हम कहते हैं डिफेक्टिव हेरिडिटी, या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो, यानी कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस उसके लिए सूटेबल ना हो, अदरवाइज कोई इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड एज द पैथोजन। ये बात ध्यान देने वाली है, जो डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड पैथोजन, और जिसको डिजीज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द होस्ट। मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन and the organism on which it attack that is called as the host. Okay, now there are so many varieties of the plant that are having resistant, means that do not allow the pathogen to attack over it, that are called the resistant varieties. However, there are some strains that when the pathogen attack the symptoms appear, means disease appear, that are called as a susceptible strains. ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, हमें पहले अगर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना चाहते हैं तो हमें पहले पता हो कि पैथोजन जब करता है, कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज़ करता है, किस तरीके से डिजीज़ करता है, क्या उसका लाइफ साइकिल है, वी मस्ट हैव द डिटेल इन्फॉर्मेशन। फिर हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ लेने के लिए हम पहले जर्म प्लाज्म, जैसे आपने प्लांट ब्रीडिंग का सारा प्रोसीजर पढ़ा था कि फर्स्ट आपको जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि वाकई ही वो उस करेक्टर के लिए रेजिस्टेंट है या नहीं, फिर आप सेलेक्टिव प्लांट से उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और बार बार इवेल्युएशन टेस्टिंग करने के बाद आप उसकी कमर्शियलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ हैं डिफरेंट क्रॉप्स की जो डेवलप करी गई हैं बाय द प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। दीज varieties have been developed for a particular disease, means that particular crop is resistant to that particular disease. This table is something very important. This is also given in your NCERT. So here I have mentioned few crops
जैसे वीट की एक हिमगिरी वैरायटी डेवलप की गई दैट इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ओके, मीन्स दैट विल नॉट बी अटैक्ड बाय द दिस पर्टिकुलर डिजीज। देन ब्रासिका की जो डेवलप की गई वैरायटी दैट इज प्यूसा स्वर्निम दैट इज रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट। एंड काउपी द प्यूसा कोमल इज द hybrid variety that was developed by the for the resistance against the bacterial blight. And chili Pusa sadabahar, it is the variety which is developed against the disease that is caused by the tobacco mosaic virus. तो आपको समझ आया कि हमारे पास ये अलग अलग जो वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं दैट आर डिजीज़ रेजिस्टेंट, मीन्स वीट की ये वैरायटी है जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। लाइकवाइज आपके पास ये डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं दैट आर रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर डिजीज़। Are you getting my point? So here you have studied first point. I told you about the plant breeding that is used in the high yielding varieties, and second point is the plant breeding for the disease resistant, means we have developed the disease resistant varieties of different crops by plant breeding. हाँ जी बेटा, next I am going to tell you about the what is the role of polyploidy in the crop improvement. This topic we have already done about the polyploidy. Here I will again explain you in detail. What is the polyploidy? That is the increase in the genome, that is called as the polyploidy. That is a organism which has more than 2 set of chromosome, that is called polyploidy. देखो आपने हैप्लॉइड सुना है, आपने डिप्लॉइड सुना है। अगर 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर का जो सेट है मीन्स मोर देन 1 सेट ऑफ द क्रोमोसोम इट इज़ देयर, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। अब ये ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है। आर यू गेटिंग? अब पॉलीप्लॉइड नेचर में कैसे क्रिएट होते हैं? बाय द नॉन डिसजंक्शन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर हम आर्टिफिशियली इसको मतलब हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पॉलीप्लॉइड? बाय द Colchicine treatment, because mitotic spindle fail to separate and there is the more than 1 set of the chromosome that will be there, more than 2 set of chromosome will be there. Is it clear? So this is the polyploidy. अब आता है पॉलीप्लॉइड से बहुत सारी क्रॉप की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, जैसे वीट की, राइस, शुगर केन, टबैको, बनाना, कॉटन, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें पॉलीप्लॉइडी की वजह से डेवलप की गई वैरायटीज़ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। जैसे कि अब पॉलीप्लॉइड 2 तरह से डेवलप होता है, एक है ऑटो पॉलीप्लॉइड और एक है एलो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड याद है आपको, न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ द जीनोम, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो पॉलीप्लॉइड। जैसे कि मेज के अंदर, राइस के अंदर ये डेवलप की गई। अब जैसे ऑटो पॉलीप्लॉइड मैंने आपको क्या बताया, न्यूमेरिकल सेट इंक्रीज, जैसे ए, तो एक ही चीज़ 3 बार होगी तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रिप्लॉइड। और ए ये क्या बन गया? ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ क्या है? न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ द जीनोम अकर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इज इट क्लियर? फिर आता है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी के मतलब क्या है कि देर इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 एंड देन देर इज़ अ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ए और बी की पहले हाइब्रिडाइजेशन हुई, देन देर इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड वी विल गेट ए बी बी। समझ आया? तो ऑटो पॉलीप्लॉइड और एलो पॉलीप्लॉइड। इज इट क्लियर? अब इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलो पॉलीप्लॉइड का, जैसे ट्रिटिकेल जो वैरायटी है दैट इज डेवलप्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ट्रिटिकम टर्जिडम एंड द सिकेल सिरेल, यानी कि वीट और राई की वैरायटी को हाइब्रिडाइज करके ट्रिटिकेल वैरायटी, जो कि उन दोनों से ही बेटर डेवलप्ड वैरायटी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, दैट इज द ट्रिटिकेल हैज़ बीन डेवलप्ड। समझ आई ये बात आपको? उसके बाद कॉटन में भी इस तरीके से वैरायटीज़ जो हैं डेवलप की गई हैं विच आर बेटर देन द इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैव बीन डेवलप्ड बाय द पॉलीप्लॉइडी। ठीक है बेटा? ऐसे ही ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी भी होता है ना, जैसे अपन ने ऑटो पॉलीप्लॉइड पढ़ा है, एलो पॉलीप्लॉइड पढ़ा है, ऐसे ही ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी भी होता है। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी जिसमें जीनोम इज मोर देन डिप्लॉइड स्टेट, जैसे 1 जीनोम इज मोर देन डिप्लॉइड स्टेट, ये भी आपने करा हुआ है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है बेटा?
फिर आता है हमारे पास म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए म्यूटेशन क्या है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। म्यूटेशन क्या है? जो सडन चेंज होती हैं, सडन हेरिटेबल चेंजेस मीन्स विच पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट आर कॉल्ड एज द म्यूटेशन। म्यूटेशंस किस वजह से हो सकती हैं? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम में डिलीशन, एडिशन, कुछ भी इन्वर्जन हो सकता है, या बेस सीक्वेंस में चेंज हो सकता है। समझ आया? अब म्यूटेशंस क्या है? दो तरह से हो सकती हैं, एक है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नेचर में होती रहती हैं, और एक है इंड्यूस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट जो है बहुत स्लो है, इसीलिए वी कैन इंड्यूस, वी कैन कॉज द म्यूटेशन, वी कैन चेंज द बेस सीक्वेंस बाय द सर्टेन एजेंट एंड दैट एजेंट्स आर कॉल्ड एज द म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस जो हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस कैसे होते हैं? जैसे केमिकल है आपके पास, जो हमारे पास केमिकल म्यूटाजेंस ने, जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक केमिकल म्यूटाजन हो गया। ऐसे ही फिजिकल म्यूटाजेंस जैसे कि टेम्परेचर है, राइट, तो दैट कैन कॉज मीन्स वेरिएशन इन द टेम्परेचर दैट कैन लेड टू द म्यूटेशंस। ओके, अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम म्यूटाजन से म्यूटेशन करते हैं एंड सम टाइम द म्यूटेंट वैरायटी दैट इज बेटर डेवलप्ड वैरायटी देन द ओरिजिनल वैरायटी एंड देन दैट वैरायटी कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम एंड मोर देन 200 varieties have been created by the mutation breeding and that are being used। ये हमने पूरा डिटेल में म्यूटेशन ब्रीडिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर आता है हमारे पास एक इसी के अंदर दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या है? दीज आर द वेरिएशंस प्रेजेंट, दीज आर द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द plant regenerated from the single culture that is called as the soma clonal variation and the plantlet which have been regenerated by the culture experiments, that is the soma clonal variations, that is called this soma clonal variation, sometimes they are very stable and they can be used from the improved varieties। for example जैसे wheat के अंदर variety जो है tolerant, drought resistant variety, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, ऐसे ही राइस के अंदर, शुगर केन के अंदर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ जो डेवलप की गई हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोमा क्लोनल वेरिएशन। ओके, सो ये हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेयर द प्लांट ब्रीडिंग इज यूज्ड। ओके, हाँ जी बेटा, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखने वाली हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग को किस तरीके से हम ऐसी क्रॉप बनाई जाए दैट आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। देखो, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करने की बजाय हम क्रॉप्स को ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएं, क्योंकि जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं व्हेन दे अटैक ऑन अ क्रॉप दैट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है? ऐसी क्रॉप्स डेवलप करनी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं, जैसे अगर किसी प्लांट पे हेयरी लीव्स है दैट आर नॉट मीन्स इंसेक्ट्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दैट हेयरी लीव्स। इफ द हेयरी लीव्स प्लांट इज देयर, insects will not go to eat them। Then we have some other example, for example in solid stem in case of wheat that do not attract the insects। Similarly nectarless cotton is there, nectarless cotton variety is there that do not attract the cotton bollworm। And similarly one more effect that low nitrogen content and sugar content and high aspartic acid in case of maize। अगर मेज़ की वैरायटी के अंदर लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट है और हाई एस्पार्टिक एसिड है, देन द मेज़ कॉर्न बोरर दैट विल नॉट अटैक ओवर इट। ओके, तो मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट के क्या रीजंस होते हैं कि किस तरीके से इंसेक्ट रेजिस्टेंस, या तो उसके अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो, बायोकेमिकल फीचर हो क्रॉप के अंदर, या फिजियोलॉजिकल ऐसा कोई फीचर हो जिससे क्रॉप के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए। ओके, सो वी हैव डेवलप्ड फ्यू क्रॉप्स दैट आर रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर डिजीजेस। जैसे सबसे पहली जो क्रॉप है हमारे सामने दैट इज़ ब्रासिका, जिसका जो वैरायटी है कौन सी डेवलप की गई है? प्यूसा गौरव। ये सारे टेबल्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। दीज ऑल आर मेंशन्ड इन योर NCERT, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यूसा गौरव जो है दैट इज़ अ वैरायटी विच इज़ डेवलप्ड एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू एफिड्स। ओके, सिमिलरली फ्लैट बीन प्यूसा
Pusa Sem2. The name of the variety is Pusa Sem2. It is resistant to the acids and the aphids. Similarly, okra, that is भिंडी, जिसे आप भिंडी कहते हैं, उसकी वैरायटी का नाम है Pusa Svani and Pusa A4, that is resistant to shoot and the fruit borer. Is it clear? ये समझ आ रही है आपको बात कि इस तरीके से हमने ऐसी प्लांट ब्रीडिंग क्रॉप्स डेवलप करी प्लांट ब्रीडिंग से that are resistant to particular insects and the pest. तो ऑब्वियसली क्रॉप की प्रोडक्टिव बढ़ेगी ही बढ़ेगी, समझ आया? तो ये हमने कुछ इसके नाम लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि प्लांट ब्रीडिंग को हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता प्रॉपर। अगर खाना मिलता है, जैसे अगर हम आज की डेट में हम एप्पल ले रहे हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, क्या वाकई हमें एप्पल लेने से या हमें बाकी जो भी फ्रूट्स हैं, क्या हमें सब न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं? नो, वो न्यूट्रिएंट कंटेंट हमें नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। और वो लोग जिन्हें खाना ही प्रॉपरली नहीं मिलता, उन तक वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी है दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स इटसेल्फ, मतलब सिंपल चीज़ों को खाने से भी हमें सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। आज हर चीज़ जैसे एक पाउडर फॉर्म में मिल रही है, आप न्यूट्रिएंट्स अगर आपको चाहिए, कोई भी विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो आप फलाना कोई भी न्यूट्रिएंट पाउडर ले लो, उसको पी लो, न्यूट्रिएंट्स हो भले ना हो। तो हमें क्या करना है, ऐसी क्रॉप्स हमने डेवलप की हैं प्लांट ब्रीडिंग से विच आर रिच इन द प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, मिन माइक्रो एंड द मैक्रो न्यूट्रिएंट। So what is this? This is the biofortification. Very important concept. What is the biofortification? That is the breeding of the crops to increase the vitamin, to improve the vitamin, proteins, minerals, micro and macronutrients in the plants naturally. यानी क्रॉप्स के अंदर ही वो एनरिच हो जाएं विटामिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। क्या क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे ये ऑब्जेक्टिव है कि हम बायोफोर्टिफिकेशन से क्या करना चाहते हैं। हम प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं क्रॉप में, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ वी वांट टू इंक्रीज, विटामिन कंटेंट, विटामिन उसके अंदर सारे हों, ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, माइक्रो कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल एलिमेंट्स को, जो उसका मिनरल कंटेंट है उसे हम एनरिच करना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द बायोफोर्टिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इस बात को हमने बड़े ध्यान से अपने माइंड में रखना है कि बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। दिस इज कॉल्ड द मीन्स द process of raising the crops, breeding the crops to increase the vitamin, mineral, protein content, oil content, micronutrient content of the crop. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खाना मिलने के बाद भी हिडन हंगर है। हिडन हंगर मीन्स पेट भर जाने से विटामिन, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन का कंटेंट पूरा नहीं मिल रहा, बिकॉज द क्रॉप्स दे डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। तो हमें ये प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और ऑयल को क्रॉप्स में इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? जैसे मेज का हाइब्रिड डेवलप किया गया जिसके अंदर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड है। कौन से अमीनो एसिड? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। समझ आया? यानी कि मेज़ की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई जो नॉर्मल मेज़ की वैरायटी से 2 गुना ज़्यादा उसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले। ओके, फिर है एटलस 66। इट इज़ आल्सो यूज टू रेज द गुड वैरायटी ऑफ द व्हीट हैविंग द हाई प्रोटीन कंटेंट, है ना। इसी तरीके से जो हमारे पास दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है दैट इज IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है डिफाइन द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन एंड गिव सम एग्जाम्पल। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। विटामिन ए एनरिच कैरेट, पंपकिन और स्पिनच प्रोड्यूस किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने। विटामिन सी यहाँ पे है, दैट इज द बिटर गोर्ड, बथुआ, टमाटो, मस्टर्ड। ये क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा है। इसी तरीके से आयरन रिच स्पिनच और बथुआ को क्रॉप को ग्रो किया गया है, डेवलप की गई है, मतलब इसकी हाइब्रिड वैरायटी। इसी तरीके से बीन
हाई प्रोटीन बीन कंटेंट, जिसके अंदर प्रोटीन रिच कंटेंट है, वो डेवलप की गई है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा है आज में, ये है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इंसेक्ट पेस्ट, कि आपने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप की हैं, यानी कि पेस्ट अटैक, इंसेक्ट अटैक करेगा, पर अटैक करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दैट वराइटीज दैट आर रेजिस्टेंट टू द पर्टिकुलर इंसेक्ट एंड द पेस्ट। ओके, ये रेजिस्टेंट वराइटीज़ हमने देखी हैं। फिर उसके बाद हमने बायोफोर्टिफिकेशन पढ़ा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि न्यूट्रिशनल कंटेंट ही आपने उसका क्या कर दिया, एनरिच कर दिया। सो हियर बाय द crops have been developed which have the high protein, oil, vitamin, mineral and micronutrient content. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द सिंगल सेल प्रोटीन। देखो बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें जो फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव डेवलप्ड द सो मेनी फूड इम्प्रूव्ड वराइटीज़, क्रॉप इम्प्रूव्ड वराइटीज़, बट again there is a pressure on the agriculture practices. So we must have some other alternate sources from where we can get the good quantity of the proteins as a food. Means there are some microorganisms, they are used as a food, that is called as a single cell protein. Single cell doesn't mean that unicellular or single cell is used. Single cell protein means these are the microorganisms which are used and they can be easily cultured, they can be easily grown over the wastewater, sewage water, or from the potato processing plant. Means wherever the wastewater is there, that can be used to grow that particular microorganism, these single cell protein. So these are the few example. जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना, वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड दे आर द रिच सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ होती है, स्पाइरुलिना। ऐसे ही बैक्टीरिया है, मिथाइलोफिलस, ईस्ट है, कैंडिडा यूटिलिस, और फंजाई है, फ्यूजेरियम ग्रेमिलियम। ठीक है बेटा, ये फिलामेंटस फंजाई है जो यूज़ की जाती है एज ए फूड। Okay, so this decreases the pressure on the agriculture practices and it can be used as a food for the human being as well as for the animal, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें वो प्रोटीन कंटेंट देगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? कि सबसे पहले इजीली इट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, इन द लैब यू कैन ग्रो, पर्टिकुलरली सीजन बेस्ड नहीं है, प्रोटीन रिच है, ऑयल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, फिर पुअर इन फैट कंटेंट, reduce the pressure on the agriculture production, and mainly it is based on the industrial effluent, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है easily you can culture it on them and so it reduce the or it minimize the environment pollution. तो सिंगल सेल प्रोटीन अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, ओके, तो दैट यू शुड कीप इन माइंड। फिर अब हम इसको समराइज करते हैं कि हमने आज जो प्लांट ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे पड़े, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखो, आपने ट्रिटिकेल पढ़ा, ट्रिटिकेल कैसे डेवलप हुआ था, ट्रिटिकम, टर्जिडम एंड सिकेल सीरेल की ब्रीडिंग से, है ना। तो दैट इज़ अ पॉलीप्लॉइड दैट इज़ डेवलप्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज टू एंड दैट इज़ अ गुड वैरायटी ऑफ द ट्रिटिकम, दैट इज़ ट्रिटिकेल, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी। फिर है लाइसिम रिच मेज हैव बीन डेवलप्ड। आपको बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में बताया कि जो जिसके अंदर 2 गुना ज़्यादा अमाउंट था ऐसे अमीनो एसिड्स का। म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमने 200 वैरायटीज़ ऑलमोस्ट डेवलप कर ली हैं विच आर बेटर। देन डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आपको सब टेबल्स बनवा दिए गए हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज़ रेजिस्टेंट, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड बाय द प्लांट ब्रीडिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Then pest resistant also we have already done. Okay, so this is all about the plant breeding and what are its uses. We have compiled up each and everything. What is the plant breeding, what are the different steps of the plant breeding, and what is the uses of the plant breeding in all the fields.